Hello students, today we shall do next exercise on sphere which is on tangent plane. Tangent plane क्या होता है? It is the locus of tangent lines at a point P of a sphere. राइट हाँ जी। अब देखिए आपके पास ये सफ़ियर है, ठीक है। सफ़ियर में जैसे सर्कल है, सर्कल में तो अगर हम टेंजेंट की बात करें तो एक ही लाइन बनती है, राइट। बट अगर हम 3D में हैं तो दिस इज द पॉइंट P सपोज, ठीक है। दिस इज वन टेंजेंट टू दिस लाइन, दिस इज अनदर टेंजेंट, दिस इज अनदर टेंजेंट, दिस इज अनदर टेंजेंट, ठीक है। तो ये सारे कंबाइंड टेंजेंट जो लाइंस है ये मिला के क्या बनाएंगे, एक प्लेन, एंड दैट इज कॉल्ड टेंजेंट प्लेन at point P to the sphere, right? So what is a tangent plane? It is locus of all tangent lines to a point P on a sphere, right? Hanji. Now what is the equation of the tangent plane? Equation of tangent plane at point P to the sphere x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus d equal to 0. What is, suppose the point is x1 y1 z1. Now what is the equation of tangent plane at this point to this sphere? It is given by xx1 plus yy1 plus zz1 plus u times x plus x1 plus v times y plus y1 plus w times z plus z1 plus d equal to 0. ठीक है. So how you have found this? You have replaced x square by xx1. You have replaced y square by yy1. You have replaced z square by zz1. You have replaced x by x plus x1 by 2, and you have replaced y by y plus y1 by 2. You have replaced z by z plus z1 by 2. ठीक है. So these are the replacement which you do to find the equation of tangent plane at a point, right? Next is corollary. एक corollary है, a tangent line at a point P x1 y1 z1 of a sphere is perpendicular to the radius through P. ठीक है. तो ये corollary क्या कहती है, आपके पास ये sphere है, this is the point P, and if you have this tangent line at point P and this is the radius through P, right, then this radius through P and this line, tangent line, will be perpendicular, right? So this can be proved very easily. हाँ जी. Proof is, हाँ जी, let the tangent line at PB, हाँ जी, P is the point x1 y1 z1. So the tangent line at P passes through x1 y1 z1. So we can assume that equation of tangent line is x minus x1 upon L, y minus y1 upon M, z minus z1 upon N, where L, M, N are direction ratios of the line, tangent line at P. Since this line is passing through the point P, which is x1 y1 z1, so we can take this line. ठीक है. And the sphere be x square plus y square plus z square equal to a square, right? हाँ जी. The direction ratios of the line, tangent line, are L, M, N, right? And what is the center of this radius? The sphere 0, 0, 0. And what is this? This is the point x1, y1, z1. So what are the direction ratios of this line? Direction ratios of the line OP are x1, y1, z1, right? Which is x1 minus 0, y1 minus 0, z1 minus 0. ठीक है. हाँ जी. अभी एक पीछे हमने रिजल्ट किया है, राइट? उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, that L into x1 plus M into y1 plus N into z1, ये दोनों ये इन तीनों का प्रोडक्ट का सम क्या होता है, 0 के बराबर, राइट?
सो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि ये जो लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज है ये लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियोज है ये, ठीक है। और दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम अगर 0 हो तो हम कहते हैं वो दो लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो हमने पीछे आर्टिकल किया था उससे आ रहा है, राइट, ओके। So since the product sum of product of direction ratios is 0, therefore this line is perpendicular to this line, ठीक है। Next is corollary number 2. It says the tangent plane at any point P of a sphere is perpendicular to the radius through P, ठीक है। तो ये भी सिमिलर रिजल्ट है, यहाँ पे टेंजेंट लाइन थी, अब टेंजेंट प्लेन है, राइट। टेंजेंट प्लेन और ये जो है रेडियस थ्रू P, दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर, राइट। सो ये अपने रिजल्ट करना है। नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, हाँ जी। What is the condition? The condition that the plane Lx plus My plus Nz equal to P may touch the sphere x square plus y square plus z square equal to a square, right? हाँ जी, ये क्या है सफियर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दिस इज द सफियर एंड व्हाट इज इट्स रेडियस 0 0 0, ठीक है। सपोज दिस इज द प्लेन, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो प्लेन है इसको टच कर रहा है। नाउ व्हेन डज दिस प्लेन विल टच दिस सफियर, व्हेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर दिस इज द पॉइंट पी, सपोज जहां पे ये टच कर, ऐसे बनाना था, दिस इज द पॉइंट पी, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस, perpendicular distance from the center to this plane should be equal to the radius of the sphere. अगर ये plane इस sphere को touch कर रहा है, then perpendicular distance from the center of the sphere to this point P, which is the point of contact, should be equal to radius of the sphere, ठीक है। Now what is the perpendicular distance of this point from this plane? हाँ जी, Lx plus My plus Nz equal to P or 0 0 0. What is the perpendicular distance of this point from this plane? L into 0 plus M into 0 plus N into 0 minus P upon का मॉडुलस अपॉन L square plus M square plus N square का रूट, ठीक है। दिस शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। व्हाट इज रेडियस ऑफ द स्फीयर? इट इज a. दैट मीन्स minus p का modulus, that is same as L square M square plus N square, that should be equal to a, right? It means minus p का modulus, that is p, ठीक है। p times L square plus M square plus N square का होल, ये स्क्वायर कर लो दोनों साइड, तो that should be equal to a square, right? Sorry, ये इसके साइड है ना, that means p square should be equal to a square times L square plus M square plus N square. So this is the required condition. This is the required condition for this plane to touch this sphere, right? अगर हमने किसी प्लेन को शो करना है कि वो इस स्फीयर को टच कर रहा है, then you check this condition. अगर ये इसके बराबर है, then you can decide that the plane touches the sphere. Next is, ये तो था स्टैंडर्ड स्फीयर। द कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन? दैट द प्लेन Lx plus My plus Nz equal to P may touch the sphere x square plus y square plus z square plus 2ux plus 2vy plus 2wz plus t equal to 0. वैसे तो ये कंडीशन अगर आप याद रख सको तो रख सकते हो, लेकिन याद रखने की बजाय आप इसको वहां पे डायरेक्टली डिराइव ही कर लेना कि क्या कंडीशन हो सकती है, फिर वो कंडीशन डिराइव करके क्वेश्चन के लिए आप उसको सॉल्व करना,
राइट। हाँ जी, सेम कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर 0 0 0 नहीं है। व्हाट इज सेंटर ऑफ दिस स्फीयर? सेंटर ऑफ दिस जनरल स्फीयर इज माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ठीक है। सो अबाउट व्हेन विल दिस plane touch the sphere? When the perpendicular distance from the center of the sphere to this plane will be equal to radius of this sphere, right? What is perpendicular distance of minus u minus v minus w from this plane? ठीक है, what is this? It is L times minus u, m times minus v, n times minus w minus p का modulus upon square root of L square plus m square plus n square. That should be equal to what? Radius of the sphere. What is the radius of the sphere? U square plus v square plus w square minus d का square root. ठीक है, squaring both sides, what do you get? Lu plus mv plus nw plus p का whole square, that is equal to L square plus m square plus n square times u square plus v square plus w square minus d. So this is the required condition for a plane to touch a sphere. ठीक है, चाहो तो आप इसको याद रख सकते हो। अगर आपसे याद नहीं रहती तो बस ये कंडीशन लगानी है कि आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन एंड दैट शुड बी इक्वल टू द रेडियस। वहाँ आप ये डायरेक्टली डिराइव ही कर लेना, फिर इस कंडीशन को यूज करके यू कैन डिसाइड, राइट, बजाय इसको याद रखने के। हाँ जी, now I will do some examples. Example number 1, एक आर्टिकल रह गया, वो अगले लेक्चर में करेंगे। शो दैट द प्लेन 2x minus 2y plus z plus 12 equal to 0 touches the sphere x square plus y square plus z square minus 2x minus 4y plus 2z minus 3 equal to 0 and also find the point of contact. ठीक है, सॉल्यूशन। तो वैसे तो हमें डायरेक्ट कंडीशन भी पता है, अगर वो याद रख सकते हो तो याद रख के उसमें वैल्यूज पुट कर दो, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे भी लगा सकते हैं। कंडीशन क्या है कि अगर किसी प्लेन ने किसी स्फीयर को टच करना है देन व्हाट शुड बी ट्रू? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, नाउ व्हाट इज सेंटर ऑफ दिस गिवन स्फीयर? सेंटर इज 1 2 minus 1, ठीक है, एंड व्हाट इज द प्लेन? 2x minus 2y plus z plus 12 equal to 0, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। एंड व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस स्फीयर? इट इज 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर रूट, दैट इज 4 प्लस 1 6 9 का स्क्वायर रूट, दैट इज 3, ठीक है। सो व्हाट इज द कंडीशन? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू दिस प्लेन शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। बस फॉर्मूला लगाना है। What is perpendicular distance? 2 times 1 minus 2 times 2 plus minus 1 plus 12 का modulus upon square root of 4 plus 4 plus 1, that should be equal to 3, ठीक है। It means what is this? 2 minus 4 or 2 minus 1 1 1 minus 4 minus 3 plus 12 9 upon 3, that is equal to 3, ठीक है। So the left hand side is 3 and right hand side is also 3, so both are same, right? So perpendicular distance from the center of the sphere to this plane is equal to radius of the sphere and hence this plane touches the sphere. Now we are to find the point of contact, right? हाँ जी, point of contact कैसे find out करेंगे? हाँ जी, now this line passes through which point? 1 2 minus 1 which is the center, ठीक है। ये जो लाइन है ये किससे पास हो रही है? 1 2 minus 1 से। एंड दिस लाइन अभी हमने करोलरी 2 में किया है, ये जो लाइन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अगर ये लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है इट मीन्स दिस लाइन इज पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन, ठीक है। एंड व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन? अगर आपके पास ये प्लेन होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन? दे आर a b c,
ठीक है. So what are the direction ratios of the normal to this plane? They are 2 minus 2 1, right? So direction ratios of this line will also be 2 minus 2 1 because ये जो line है इस plane के perpendicular है, therefore this line is parallel to the normal to the plane. अगर पैरेलल है दोनों के डायरेक्शन को साइन बराबर होंगे. तो अगर इसकी नॉर्मल के डायरेक्शन का साइंस 2 minus 2 1 है तो इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? 2 minus 2 1. So this line is passing through the point 1 2 minus 1 and has direction ratios 2 minus 2 1. So what is the this is suppose P, this is suppose C. So what is the equation of the line CP? Equation of line CP will be equal to what? X minus 1 upon 2 z, y minus 2 upon minus 2 z plus 1 upon 1. ठीक है, ये पॉइंट पुट कर दिया जहां से वो पास हो रही है और ये मैंने नीचे क्या ले लिया उसके डायरेक्शन रेशियोज. ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन CP. सो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल बी ऑफ द फॉर्म 2r plus 1 minus 2r plus 2 r minus 1. ठीक है, तो इस लाइन पे कोई भी अगर पॉइंट है तो वो इस फॉर्म का है. नाउ द पॉइंट P हैज टू प्रॉपर्टीज. ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर तो है ही है, साथ में ये जो पॉइंट है इट ऑल्सो लाइज ऑन द प्लेन. ठीक है, तो अगर इस पॉइंट ने P होना है तो इसको प्लेन के ऊपर लाई करना पड़ेगा. सो इट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. ठीक है, सो इट मीन्स 2 times 2r plus 1 minus 2 times minus 2r plus 2 plus r minus 1 plus 12. दैट शुड बी 0. यहाँ से r की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? -1. पुट दिस वैल्यू ऑफ r इन दिस पॉइंट, यू विल गेट द पॉइंट P. इज इट क्लियर? तो क्या किया हमने? सबसे पहले हमने ये शो करना था कि ये जो प्लेन है इस सफियर को टच कर रहा है. तो हमने कंडीशन लगा दी कि अगर इस प्लेन ने सफियर को टच करना है देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सफियर टू दिस प्लेन शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सफियर. तो जब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया और रेडियस का फॉर्मूला लगाया बोथ आर सेम. सो वहां से ये शो हो गया कि दिस प्लेन टचेस द सफियर. अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था? वी आर टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एज वेल, राइट? तो हमने ये पॉइंट P निकालना है. तो इसके लिए सबसे पहले हमने इसकी इक्वेशन निकाली CP की. CP की इक्वेशन दो तरीके से एक निकल सकती है अगर हमें ये पता चल जाए कि वो लाइन किससे पास हो रही है और इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या है. तो ये लाइन ऑब्वियसली 1 2 -1 से तो पास हो ही रही है सेंटर से, और इसकी एक खासियत है कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, राइट? करोलरी 2 से. सो अगर ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसके डायरेक्शन रेशियोज वही होंगे जो इस प्लेन की नॉर्मल के हैं, और इस प्लेन की नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो है 2 minus 2 1. ठीक है, तो इस लाइन के भी डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए? 2 minus 2 1. सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन CP इज दिस वन. नाउ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज इक्वल टू 2r plus 1 minus 2r plus 2 r minus 1. इसको r के बराबर रख के, राइट? बट अगर ये पॉइंट को P होना है तो इसको प्लेन के ऊपर भी लाई करना पड़ेगा. तो मैंने प्लेन के ऊपर लाई करवा दिया, वहां से r की वैल्यू आ गई. वो r की वैल्यू मैंने जब इस पॉइंट पे डाली, आई विल हैव द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 2. फाइंड the equation of the sphere which touches the sphere x square plus y square plus z square minus x plus 3y plus 2z minus 3 equal to 0 at 1 1 minus 1 and passes through the point passes through origin. ठीक है, हमने उस सफियर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस सफियर को इस पॉइंट पे टच कर रही है और वो 0 0 0 से पास हो रहा है, राइट? हाँ जी. सो दिस इज द गिवन सफियर जिसका सेंटर क्या है? 1/2 -3/2 एंड -1, राइट? हाँ जी, हमने उस सफियर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इसकी फाइंड आउट करनी है जो इस सफियर को किस पॉइंट पे टच कर रहा है? 1 1 -1 पे, और किससे पास हो रहा है? वो पास हो रहा है 0 0 0 पे, राइट? तो इस सफियर के बारे में हमें दो चीजें पता है कि इस सफियर ने इस सफियर को इस पॉइंट पे टच करना है और इससे पास होना है, राइट? हाँ जी.
नाउ अब हमें पता है इफ यू कंसीडर द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट P टू दिस सफियर, ठीक है, कंसीडर द टेंजेंट प्लेन टू सफियर, दिस इज सफियर 1, दिस इज सफियर 2, ठीक है, एट 1 1 माइनस 1 इज गिवन बाय, निकाल सकते हैं हम, क्या है फॉर्मूला, x1 क्या है 1, y1 इज 1 प्लस z1 इज -1 माइनस x प्लस x1 बाई 2, x प्लस x1 बाई 2 प्लस 3 टाइम्स y प्लस y1 बाई 2 प्लस z प्लस z1 minus 3 equal to 0. So this is the equation of tangent plane to this sphere at this point. इसको सॉल्व करके आ जाएगा x plus 5y minus 6 equal to 0. ठीक है, so this is the point P, point of contact. ठीक है, अब अगर ये जो स्फीयर है इस प्लेन, ये जो प्लेन है इसका टेंजेंट प्लेन है पॉइंट P, तो हमें जो पिछली एक्सरसाइज की थी हमें पता है कि एक स्फीयर जब किसी प्लेन, कोई प्लेन जब किसी स्फीयर को कट करता है तो एक सर्कल बनता है, बट ये जो प्लेन है ये इसको कट नहीं कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्लेन ने इस स्फीयर को कट किया इन ए सर्कल विच इज अ पॉइंट सर्कल, ओनली P पॉइंट, ठीक है, ये स्फीयर और ये प्लेन ने मिलके भी एक सर्कल बनाया, कौन सा सर्कल, द पॉइंट सर्कल P, ठीक है। अब हम P को एक सर्कल मान के चल सकते हैं, और इस स्फीयर की हम क्या खासियत कह सकते हैं कि ये जो स्फीयर है ये इस P सर्कल से पास हो रहा है, विच इज पॉइंट सर्कल, ठीक है, हाँ जी। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच पासिस थ्रू दिस सर्कल विच इज P पॉइंट, हाँ जी, ये स्फीयर और ये प्लेन मिला के क्या बनाते हैं, पॉइंट सर्कल। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x plus 3y plus 2z minus 3 equal to 0, and what is the equation of plane, 5y minus 6 equal to 0. So ये दोनों ने मिलके बनाया एक सर्कल which is point P, ठीक है। हमें पता है कि इस सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन हम कैसे लेते हैं। नाउ द स्फीयर थ्रू द अबव सर्कल दैट इज थ्रू पॉइंट P, तो उसकी इक्वेशन कैसे लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3y प्लस 2z माइनस 3 प्लस k टाइम्स x प्लस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर विच पासिस थ्रू द पॉइंट सर्कल P, ठीक है। नाउ इस स्फीयर की जो हमने फाइंड आउट करना है वो P से तो पास हो ही रहा है, बट उसकी एक और खासियत है कि वो 0 0 0 से पास भी हो रहा है। So this sphere passes through the point 0 0 0, therefore it will satisfy this point. So therefore this is 0 minus 3 plus k times minus 6 will be equal to 0. That means 6k will be minus 3, that means k will be minus 1 by 2. Put this value of k in this equation, you will find the equation of the required sphere. Okay. So this way you are to do these questions. इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं और एक जो आर्टिकल है वो मैं आपको अगली उसमें कराऊंगी वीडियो में। थैंक यू।